Assalamu alaikum, my dear students of class 4. How are you all students? Hopefully you all will be fine and safe at your homes and giving the proper time towards your studies. Okay students, so now please we are going to start our today's lecture, but before starting the today's lecture, I would like to share a good thought with you, that is like as say good words, think good thoughts, do good deeds. यानी अच्छे अल्फाज बोलो, अच्छे वर्ड्स बोलो, अच्छी बातें सोचो और अच्छे काम करो, ठीक है ना। तो ये एक बहुत पॉजिटिव थॉट है, बहुत पॉजिटिव चीज़ है, एक बहुत अच्छा मैसेज है जो आज के लिए इस लेक्चर से पहले है। Okay, now it's the time to move towards the today's lecture. It's my lecture number 3B, and we are studying the chapter number 10, force, work and energy. And in the previous lectures you have done the warm-up activity. I think you understand what is the force, and we also have discussed the definition of force. We also have discussed what is the force. You know that pushes and pulls are forces, and we have seen number of examples, like in the playing, in doing the writing, in reading, in studying. We can observe the examples of forces. ठीक है ना। तो as you can see few diagrams in your few pictures in your book, in all this you can observe the force. Okay. After that we have studied what force can do. Okay, what force can do, you know that force can do many of the things, like it can move a body, change the direction of a moving body, stop a moving body, and force also can change the shape of a body. Okay, as you can see in the diagram, that there is a rod and it has been twisted with the help of hands by using the फोर्स। ओके, तो फोर्स ये हमने पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल किया है कि हम क्या क्या स्टडीज़ कर सकें। एंड आई हैव गिवन यू 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन फोर्स, एंड क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फोर्स कैन डू। ओके स्टूडेंट्स, होपफुली यू हैव डन द वर्क इन योर journals. Okay, now students, we will move towards the lecture number 3B. Now in my lecture number 3B, we are going to discuss the types of force. Okay, at the page number 78, we are going to discuss about the types of force. ठीक है, 3 types of forces are given here in the book. 3 force types बताई गई हैं यहाँ पर बुक में। force की बहुत सारी types होती हैं, लेकिन इनमें से 3 types बताई गई हैं। Number 1 is the muscular force, number 2 gravitational force, number 3 is the frictional force. Okay students. Okay, I'm repeating. Number 1 is muscular force, number 2 gravitational force, number 3 is the frictional force. Now what is the muscular force? Muscular force muscle से है, ठीक है ना। नेम से ही समझ में आ रहा है, it is connected with the muscles. Okay, I'm reading from the book. When you use your muscles to move things, you use muscular force. Animals use muscular force when they use their muscles to pull a load. ठीक है ना। जब आप जो है कोई भी चीज़ जो है पुल करने के लिए, पुश करने के लिए जब फोर्स यूज़ करते हैं, तो आप ज़ाहिर विद द हेल्प ऑफ योर बॉडी यूज़ करते हैं। और जो है जब इस बॉडी की फोर्स यूज़ करते हैं, तो इसमें मसल्स की फोर्स जो है वो यूज़ होती है, मसल्स यूज़ होते हैं, मसल्स की फोर्स यूज़ होती है इसमें, और इस फोर्स को ही हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, यानी हम बॉडी से कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारी मस्कुलर फोर्स जो है वो यूज़ होती है। ठीक है, आप कोई चीज़ कटिंग कर रहे हो, कोई चीज़ लिफ्टअप कर रहे हो, या कोई भी किसी भी किस्म का काम कर रहे हो अपने हैंड्स की हेल्प से, ठीक है, या अपनी बॉडी की हेल्प से, तो क्या है उसमें मस्कुलर फोर्स यूज़ होती है। एज इन द डायग्राम यू कैन सी देयर इज़ अ मैन, ही इज़ कटिंग द वुड विद द हेल्प ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो एक्स यूज़ करते हैं, वो जो वुड की पीसेस की कटिंग कर रहा है, तो ज़ाहिर है ऐसा काम करते हुए वो मस्कुलर फोर्स यूज़ कर रहा है। यू कैन सी इन द नेक्स्ट डायग्राम दे आर द काउस एंड दे आर प्लोइंग द फार्म। ठीक है ना, तो फार्म को प्लो कर रहे हैं, यानी जो एनिमल्स हैं वो जो है खेत में में चल रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज द, खेत को प्लो कर रहे हैं। ठीक है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज द, दे आर यूजिंग देयर मसल्स, ओके, टू प्लो द फील्ड। तो जैसे आपको पता है ना, मिट्टी को जैसे नरम करते हैं, ठीक है ना, खेत में कोई चीज़ उगाने से पहले तो मिट्टी को नरम करते हैं, और उसके लिए एनिमल्स यूज़ किए जाते थे पहले, तो ट्रैक्टर आजकल यूज़ होते हैं, तो इसको जो है ना प्लोइंग ऑफ द फार्म्स कहते हैं। तो इसमें भी मस्कुलर फोर्स यूज़ होती है एनिमल्स की। Now move towards the gravitational force. Please look at your books, page number 76.
Okay, I'm reading from here. When you throw a ball up in the air, it comes down. This is because the earth pulls everything towards itself. This pull or force which pulls all the things towards the center of the earth is called as the gravitational force. Okay students, देखिए क्या है आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब भी हम कोई चीज़ लाइक बॉल है उसको हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उछालते हैं उसे, तो वो वापस हमारे पास अर्थ की तरफ ही आती है, अर्थ पे ही जाके गिरती है, वो कहीं भी इधर उधर नहीं जाती। वो हर चीज़ जो है जिसको भी ऊपर की तरफ फेंका जाए वो ऑटोमेटिकली अर्थ की तरफ ही वापस आती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अर्थ हैज़ अट्रैक्शन। ठीक है ना, अर्थ में जो है अट्रैक्शन होती है, अर्थ में जो है चीज़ों को अपनी तरफ पुल करने की फोर्स होती है, तो वो चीज़ों को बहुत दूर तक नहीं जाने देती और जो है चीज़ों को वापस अपनी तरफ खींच लेती है, वापस अपने उसकी फोर्स अप्लाई होती है उन चीज़ों के ऊपर और वो चीज़ें वापस अर्थ की तरफ ही वापस आ जाती हैं। इट इज़ कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सिंपली इट इज़ कॉल्ड एज द ग्रेविटी। क्या कहते हैं इसे? सिंपली हम इसे ग्रेविटी कहते हैं, इसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं और इसे ग्रेविटी भी कहते हैं, यानी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी अर्थ की चीज़ों को अट्रैक्ट करने की जो पावर है, जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, दैट इज़ कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। लाइक आप एक छोटी सी एग्जांपल ले, लाइक कोई पेन है, कोई बॉल है, कोई एप्पल है, जो भी चीज़ अगर ऊपर से आप नीचे गिराएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अर्थ की तरफ ही आएगा। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है ना, हर चीज़ ये सब जो होता है ये ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, क्योंकि अर्थ की अट्रैक्शन की पावर जो है वो हर जगह जो है उस पर हर चीज़ पे इफेक्ट कर रही होती है, अपनी तरफ खींच रही होती है। Now class, we will move towards the frictional force. What is the frictional force? Frictional force is that force which can be observed when two objects will come in the contact with each other. ठीक है, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं और वो रब होती हैं, ठीक है, आपस में रब होती है यानी घिसटती हैं, आपस में से टच करती हैं, आपस में टच करना ज़रूरी है, ठीक है ना, कांटेक्ट करती हैं, टच करती हैं आपस में दो चीज़ें, और जो है वो एक दूसरे पर से स्लिप होती हैं, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एज इफ़ यू स्लिप अ बुक ओवर द डेस्क। ठीक है ना, एक बुक है, उसको अगर आप डेस्क के ऊपर से आप ट्रैक करें उसे आप स्लिप करें उसे, तो क्या होगा? बुक और जो टेबल है वो दोनों आपस में जो है डेस्क और जो बुक है वो दोनों आपस में टच करेंगी और ज़ाहिर है दोनों के बीच में जो है एक जो है फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और जो है वो इस तरह से आपस में ड्रैग करेंगे। अच्छा, आप देखिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा लाइक कुछ शॉपिंग मॉल्स पे हम जाते हैं, कहीं पे किसी ठीक है लग्जरियस जगह पे हम जाते हैं, तो वहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ का जो फ्लोर होता है, वहाँ का फ्लोर जो है बहुत स्लिपरी सा फील होता है। ठीक है, न्यू कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे भी फ्लोर जो है बहुत स्लिपरी सा फील होता है। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा जो चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत इन्जॉय भी करते हैं और वहाँ पर वो जो है लाइक रनिंग टाइप मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे वो लाइक जो है वो थोड़ा सा जो है ना रनिंग स्टाइल में जो है ना वो मूव करते हैं। ओके, लाइक स्प्रे। तो देखिए आप जो है वहाँ की जो अर्थ की जो सरफेस होती है, बाद जगह पे फ्रिक्शन कम होती है, तो वहाँ बहुत समझ के जाना पड़ता है। अच्छा, एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज ऑयल ओवर द अर्थ। ठीक है, अगर ऑयल हो तो वो जगह क्या होगी? बहुत ऑयली सी हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे जो है मूव करना, चलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑयल की वजह से उस अर्थ की फ्रिक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, वरना अगर ऑयल ना होगा प्रॉपरली, जैसे नॉर्मल सी अर्थ होगी, तो क्या होगा? वहाँ पर हम ईजिली मूव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जो है एक बहुत अच्छी फोर्स है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फोर्स है हमारे लिए, जो जिसकी वजह से हमें चलने फिरने में हेल्प मिलती है, जिसकी वजह से हम अर्थ पे बहुत इजीली वॉक कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो है हम इजीली जो है हमारी मूवमेंट इजी हो जाती है और हम स्लिप नहीं करते हम। ठीक है, इवन ऑल्दो कि वहाँ पर ऑयल हो या कोई स्लिपरी प्लेस हो, हम स्लिप नहीं करते हैं और जो है बहुत आराम से कदम जमा कर हम वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हमारा जो फुट है, उसके जो शूज़ हैं और जो अर्थ है वो आपस में कांटेक्ट में आते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे मूवमेंट हमारी इजी हो जाती है और स्लिपिंग नहीं होती है। अगर फ्रिक्शन किसी जगह पे बहुत कम हो तो जो है वहाँ पे स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों में हम जो है फ्रिक्शन ऑब्जर्व कर सकते हैं। Now my dear students, we are moving towards the homework. Today's homework. Okay, I'm giving you only one question in the homework. Okay, so please do the homework on time. I hope that you have done the previous question number 1 and question number 2 in your journals. So please do the today's homework. Okay, I'm giving you question number 3. Question number 3 is that name the types of forces. Okay, it is a question. Then you will write the answer. In the answer you will put the heading types of forces. ठीक है, types of forces की heading डालेंगे और उसके आगे ही कंटिन्यू heading
हेडिंग मार्क डाल के, ठीक है, हेडिंग मार्क है, इसके आगे डाल के आप उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे RS फॉलोइंग, ठीक है। यू विल डू ऑल द वर्क विद पेंसिल। पता है ना आप लोग को, हेडिंग के लिए आप कलरफुल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं और बाकी सारा जो वर्क है, क्वेश्चन आंसर है, सब अपने पेंसिल से करने हैं। ओनली फॉर हेडिंग्स यू कैन यूज़ द कलरफुल पेंसिल्स, ओके। कलरफुल पेंसिल्स आप सिर्फ हेडिंग्स के लिए यूज़ करेंगे, इसके अलावा क्वेश्चन है, आंसर है, सबका सब अपने पेंसिल से करना है, ठीक है। अच्छा, यू विल पुट द हेडिंग टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देन यू विल राइट RS following. Number 1 muscular force, number 2 gravitational force, number 3 frictional force, okay. Be careful about the spellings, ठीक है। के लिए आई विल सेंड यू द पिक ऑफ दिस होमवर्क ऑल्सो। इसकी मैं पिक भी आपको सेंड कर दूँगी, मैंने लेक्चर में भी अटैच कर दिया है, तो प्लीज़ होमवर्क टाइम पे कर लें, ओके। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क मी स्टूडेंट्स। आपने ये पूरा होमवर्क साइंस के नीट जनरल्स में करना है आपने, ठीक है ना, तो वहीं से कंटिन्यू करना है अपने काम, ठीक है। और इसको जो है नीटली प्रॉपरली करें से, फिर आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पर आप जाके अपने जनरल्स जो है चेक करवाएंगे। सो ओके स्टूडेंट्स, होपफुली आई थिंक यू हैव नो प्रॉब्लम। प्लीज़ डू द वर्क ऑन टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।